what is working capital? Working capital क्या होता है? Working capital is a description of that capital which is not fixed. First we have to understand the working capital is not fixed. It is the difference between the assets and the liabilities. No, it is not the difference between the assets and the liabilities. It is the difference between the current assets and the current liabilities. Current assets और current liabilities में जो difference है. Why do we take current assets and current liabilities? हम लोग current assets और current liabilities क्यों लेते हैं? We take current assets and current liabilities because the operating cycle of the business is considered. If the operating cycle is of 1 year, we will take 1 year, or 8, if the operating cycle is 8 months, we will take 8 years circulating capital, which would be the difference, that would be current assets minus current liabilities. अगर हम circulating capital लेंगे, it will be current assets minus current liabilities, that is the working capital. मतलब जो business का operation cycle है, right from buying of the raw material till the end, जब sales होता है और पैसे आते हैं, that time, the money circulating during that time, that is working capital is considered. कैश, अभी कैश क्या है? कैश इज़ अ मोस्ट लिक्विड आइटम ऑफ द करंट एसेट. ऑब्वियस है, कैश इज़ अ मोस्ट लिक्विड आइटम. आपने पैसे दिए और रॉ मटेरियल खरीद लिया, सो इट इज़ द मोस्ट लिक्विड आइटम. इन केस ऑफ द कैश मैनेजमेंट, देयर हैज़ टू बी बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. कैश मैनेजमेंट में बैलेंस होता है लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के. इफ कैश इज मोर देन आइडल कैश डज नॉट अर्न एनीथिंग एंड हैंस रिटर्न्स आर नॉट जनरेटेड. अगर कैश ज़्यादा है, आइडल कैश ज़्यादा है, तो रिटर्न्स जनरेट नहीं होगा. If cash is not sufficient, then it will adversely affect the liquidity and image of the firm. अगर cash sufficient नहीं है, if the cash is not sufficient, it will adversely affect the liquidity and image of the firm. जो liquidity है और image है, उसको adversely affect करेगा. कैसे adversely affect करेगा? अगर cash बहुत ज़्यादा है, तो जो funds है, जो cash है, वो अटक जाएगा. जो कैश है, इट विल बी, वो अटक जाएगा एंड विल नॉट बी एबल टू यूटिलाइज दैट कैश फॉर अदर थिंग्स. एंड इफ द कैश इज लेस, वी मे नॉट गेट द प्रॉपर काइंड ऑफ द रॉ मटेरियल, प्रॉपर काइंड ऑफ इन्वेंट्री दैट इज रिक्वायर्ड. तो कैश बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए. Now we have marketable securities. Now what are marketable securities? मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या रहता है? व्हाट आर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़? मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आर टेम्पररी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मेड आउट ऑफ द सरप्लस कैश बैलेंस. मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो है वो टेम्पररी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है. व्हाट इज़ टेम्पररी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कैश and I know it would not be utilized for next 3 months, so I'll invest that amount of cash only for 2 to 3 months in a marketable security. किसी security, जो security है वो liquidate कर सकती हूँ मैं within 3 months. Now I need an immediate cash. अभी मुझे immediate cash चाहिए, so I'll do it within 3 months. Within 3 months I can liquidate it. I can sell the security and get the cash. It helps to employ the idle cash. उससे क्या होगा? idle cash employ हो जाएगा, हमारा investment हो जाएगा फॉर अ लिटिल पीरियड ऑफ टाइम, और उससे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इम्प्रूव होगा. रिसीवेबल इज द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ सन्ड्री डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल अराइजिंग आउट ऑफ द क्रेडिट सेल्स. अभी रिसीवेबल क्या होगा? नाउ वी मेक सेल्स, हम लोग सेल्स करते हैं, लेकिन कैश सेल्स पे नहीं चल सकता है. नाउ सेल्स इज ऑफ 2 types. वन इज द कैश सेल्स एंड अदर इज द क्रेडिट सेल्स. नाउ व्हाट आर क्रेडिट सेल्स? व्हेन वी गिव द raw material or we give the stock, it could be any, we give the stock, it could be finished good, it could be raw material. Now when the stock is given, but we'll release the cash, we'll realize it after 4 months, after 5 months, could be after 8 months. तो वो रिसीवेबल्स जो है वो उतना टाइम हमारा पैसा ब्लॉक करके रखते हैं. तो रिसीवेबल्स सन्ड्री डेटर्स के रूप में भी हो सकते हैं और बिल्स रिसीवेबल के रूप में भी हो सकते हैं. The firm selling a credit along with the cash sale have higher turnover. जो firm है credit sale करता है, उसका turnover ज़्यादा होगा, will have the higher turnover. Okay, now inventories. Now what are the inventories? Inventory is nothing but the stock.
stock of raw material, WIP, finished goods, stores, spares and packing material. Inventory include investment in the stock of raw material. Raw material के stock में जो inventories होगा, inventory include investment in the raw material, WIP, finished goods, work in progress, बहुत सारा inventory रहता है. If you see a construction company, आधा काम किया हुआ रहता है, raw material brick cement पड़ा रहता है, आधा floor आधा स्टोर बना हुआ रहता है, स्टोर्स रहता है, पकड़ पाना ये सब रहता है, स्टोर स्पेस, पैकिंग मटेरियल, बहुत कुछ होता है. इन्वेंट्री हैज़ टू टेक इन टू अकाउंट फिक्सिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम लेवल ऑफ द इन्वेंट्री. आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ा होगा, वेर इन वी हैव टू फिक्स कि व्हाट वुड बी द प्रॉपर अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री विच शुड बी रिक्वायर्ड. ज़्यादा हो जाएगा तो ओवर स्टॉकिंग हो जाएगा, कम हो जाएगा तो अंडर स्टॉकिंग हो जाएगा. अगर ओवर स्टॉकिंग हो जाएगा तो रॉ मटेरियल हो सकता है, रॉ मटेरियल में get destroyed due to evaporation or due to theft. अगर कम हो जाएगा तो प्रोडक्शन साइकिल रुक जाएगा. सो दैट इज इन्वेंट्रीज. Creditors, bills payable. Now creditors and bills payable are due to credit purchases. Creditors और bills payable क्यों होते हैं? Credit purchases. The role of the manager is to get the liberal credit terms. Better working capital includes stretching the payment to the maximum without affecting the goodwill and payment of the firm adversely. उससे क्या होगा? goodwill और payment of the firm. Now what are the creditors? We can pay the amount after some time. जैसे हमने डेटर्स किया था, डेटर्स हमको थोड़े टाइम के बाद पैसे देंगे. सिमिलरली क्रेडिटर्स को हम क्या करेंगे? विल गिव देम द अमाउंट बट आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद. बेटर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इंक्लूड स्ट्रेचिंग द पेमेंट टू द मैक्सिमम अफेक्टिंग द गुडविल एंड पेमेंट ऑफ द फर्म एडवर्सली. उससे क्या होगा? गुडविल और पेमेंट ऑफ द फर्म एडवर्सली अफेक्ट होगा. बिकॉज अफेक्टिंग द गुडविल, उससे गुडविल और पेमेंट एडवर्सली इफेक्ट होगा. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगर क्रेडिटर्स बहुत ज़्यादा टाइम तक क्रेडिटर्स को पे नहीं किया तो मार्केट में गुडविल का असर आएगा कि दे आर नॉट पेइंग द अमाउंट प्रॉपरली, दे आर नॉट डूइंग द बिजनेस प्रॉपरली. तो उससे क्या होगा? इमेज, दैट इज़ द गुडविल और पे आउट को एडवर्सली इफेक्ट होगा. सो द क्रेडिटर्स शुड बी पेड टाइम टू टाइम. दैट्स ऑल फॉर नाउ. That's all for this class. In next class we'll be dealing with the next financial topic. That's it.